हेलो एवरीवन। सो राइट नाउ यू ऑल आर वरीड अबाउट आपके सीवीटी में मार्क्स कैसे आएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी बनाई है तो नो मैटर वेदर यू गेट 800, 600 और जस्ट 400, you will land up in a very good college of Delhi University. This is Shivangi Singh and I am currently pursuing chemistry honors at ARSD College, that is Atmaram Sanatan Dharm College at Delhi University. So basically it is an IRF ranking 5th college and 3rd ranking in Delhi University colleges. And you won't believe that I literally got 309 marks in my CVT examinations, and then how I landed up in such good colleges, it is all because my preference list. Yes, science courses cutoff might go up to 450 to 500, but there are much more good and underrated colleges at Delhi University which provide admission at just 300, 350. Because everyone tries to put colleges which are overhyped, जिसे उन्होंने रील्स में देखा होता है या फिर अपनी पोस्ट में देखा होता है, सो दे ट्राई टू फिल दैट कॉलेजेस ओनली. लेकिन जब आप कैंपस में जाते हो तो वहाँ जाके आपको पता चलता है देयर आर मच मोर बेटर कॉलेजेस. आप जिस कॉलेज में हो उससे ज़्यादा बेटर दूसरा कॉलेज है. वहाँ की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, फैकल्टी ज़्यादा अच्छे हैं, फेस ज़्यादा अच्छे हैं. एंड जस्ट बिकॉज दे वर नॉट ओवर हाइप, तो तुमने उसे अपनी लिस्ट में नीचे रख दिया, जिसकी वजह से यू विल सफ़र अ ग्रेट लॉस. And while making my preference list, I also made these mistakes. Like when I went to the campus, I felt like there are much more better colleges जिन्हें मैंने अपनी preference list में नीचे रखा था, पर वहाँ जाके मुझे पता चला कि these colleges are better than my colleges. So preference list do make a very great difference. Students usually prefer colleges of North campus. Like there's a mentality at DU that North campus is best, then South campus, then off campus. But the reality is, in North campuses there are few colleges are good. Then we have few good colleges of South campus. Then again, ranking goes few from North and few from South, all that. बट स्टूडेंट्स थिंक कि नॉर्थ कैंपस में सारे अच्छे कॉलेज हैं, फिर उससे बेकार कॉलेजेस साउथ कैंपस में हैं, और फिर उससे बेकार कॉलेजेस ऑफ कैंपस में है. दिस इज़ टोटली अ मिथ. You should always check the NIRF ranking of colleges at Delhi University, because like if we compare Khalsa College of North Campus and Venkateshwar College of South Campus, Venkateshwar College of South Campus is much more better and have a much more high ranking than Khalsa College of North Campus. So students usually fill North campuses first in their preference list and then South campuses, but you have to fill the colleges according to your NIRF ranking so that you can land up in a good colleges with good placement, good faculties and good atmosphere. And this makes a very great difference, because mostly student fills all the colleges of North campus and then the colleges of South campus. So the cutoff goes like that only. जहाँ पे ज़्यादा बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है उसका कट ऑफ आ ही जाएगा. और जो अंडर रेटेड कॉलेज हैं, जिनकी रैंकिंग ज़्यादा है, जिनकी प्लेसमेंट ज़्यादा है, उस पर कम बच्चे फाइट कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि दीज कॉलेजेस आर नॉट गुड. एंड दैट्स वॉट हैपेंड विद मी. Everyone was filling North campuses colleges first and then South campuses college, but I filled the college according to the NIRF ranking. So in my course, like Hindu was at first, Miranda had the second NIRF ranking, and ARSD had the third NIRF ranking. And then when the cutoffs come, I saw that all the North campuses colleges have high cutoffs, and then the South campuses colleges have comparatively low cutoffs, because people are not aware of this all concept at DU. So usually they make mistakes like this, because there are so many people who are misguiding this kind of information, and they don't know exactly what the concept is at Delhi University colleges, placements and all. So there are basically two major steps, two ideal steps I can say to make a preference list. First, you should make a list of colleges. Like you should make 3 lists, one for North campus colleges, one for South campus colleges, and third obviously for off campuses colleges, and then arrange those colleges according to the NIRF ranking. और अगर आपको NIRF ranking के according colleges नहीं arrange करने हैं तो better research about the colleges. Like there are some colleges in North campus which are very bad, I can say. Like there are much more better off campuses colleges, so do research about them. And first of all, you should make a list of North campus colleges, South campus colleges and off campus colleges, and arrange these colleges according to their NIRF ranking.
और अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड द फैकल्टी एंड देयर alumni रेशियो एंड ऑल दैट मेक अ कॉमन लिस्ट ऑफ अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर वे। एंड आई वुड प्रेफर कि आप नॉर्थ और साउथ कैंपसेस के कॉलेजेस को हमेशा ऑफ कैंपसेस के कॉलेज से ज़्यादा प्रेफरेंस दें, बिकॉज वहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा है एंड यू विल गेट अ कैंपस वाइब। तो अगर आप NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी फिल कर रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ कैंपसेस के कॉलेज को अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग लिस्ट बना लीजिए एंड आफ्टर दैट कीप ऑल द कॉलेजेस ऑफ कैंपस, और उसमें भी ऑफ कैंपसेस के अच्छे कॉलेजेस ऊपर और ऑफ कैंपसेस के ख़राब कॉलेजेस नीचे। एंड डोंट trust just any list or anything on internet to चेक कि नॉर्थ और साउथ कैंपसेस में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। तुम्हें खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी गलत इन्फॉर्मेशन है कि ये कॉलेजेस साउथ के हैं, ये कॉलेजेस नॉर्थ के हैं। लाइक सत्यवती कॉलेज DU की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ साउथ कैंपस कॉलेज, बट इन रियलिटी इट इज़ अ ऑफ कैंपस कॉलेजेस। तो बेटर, अगर आपके कोई रिलेशन में समवन इज़ इन DU, सो बेटर यू शुड कंसर्न विद देम। और मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूँगी नॉर्थ कैंपसेस कॉलेजेस के एंड साउथ कैंपसेस कॉलेजेस के, जो मैंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम बनाई थी, और यू कैन चेक फ्रॉम देयर। फिर ऑफ कैंपसेस के कॉलेजेस में भी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक जाकिर हुसैन कॉलेज इज़ वेरी गुड कॉलेज ऑफ ऑफ कैंपस, एंड जानकी देवी कॉलेज इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ कैंपस। देन सत्यवती, श्री औरोबिंदो, दीज आर फ्रॉम ऑफ कैंपस कॉलेजेस। And then here's the second step, or basically the main step, the mantra of making a preference list. This can either make you or break you. Actually no one gets break in finding the colleges at DU, because अगर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर है और अच्छी है तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग कॉलेजेस एट DU, बिकॉज DU लिटरली 150, 200 और 250 मार्क्स पे भी कॉलेजेस देता है। देयर आर कॉलेजेस जो 150, 250 मार्क्स पे भी एडमिशन ले रहे हैं। सो स्टेप 2 इज़ टू हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट। तो यूजुअली एवरीवन सजेस्ट यू 2 ways, आइदर मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस और अकॉर्डिंग टू अ कोर्स। लाइक अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस, तुमने अपने सारे पसंद के कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाई है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग और प्लेसमेंट, वो सबको ध्यान में रखते हुए। देन आपके 10 मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज़ की, मैं ये कोर्स मुझे पसंद है, उसकी लिस्ट बनाई कि सबसे पहले माई मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज केमिस्ट्री ऑनर्स, फिर फिजिक्स ऑनर्स, फिर मैथ्स ऑनर्स, और मिला तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स भी कर लूँगा एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री ऑनर्स को रखा एंड देन यू फिल्ड ऑल द कॉलेजेस ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। फिर यू फिल्ड योर सेकंड प्रेफर्ड कोर्स, दैट इज़ फिजिक्स ऑनर्स। फिर फिजिक्स ऑनर्स कोर्स के लिए तुमने सारे कॉलेजेस फिल कर दिए कॉलेज की अपनी लिस्ट के हिसाब से। देन यू फिल्ड अनदर कोर्स, और उस कोर्स के लिए तुमने सारे कॉलेजेस फिल कर दिए। एंड द सेकंड मेथड इज़ अकॉर्डिंग टू कोर्स। तुमने कोर्स की लिस्ट बनाई अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और कॉलेज की लिस्ट बनाई। फिर योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ हिंदू कॉलेज, तो तुमने हिंदू कॉलेज के लिए ये सारे कोर्स फिल कर दिए, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स। फिर तुमने हंसराज कॉलेज के लिए ये सारे कोर्स फिल कर दिए, लाइक दैट। बट बोथ द वेज डोंट वर्क. The best and ideal way to make a preference list is the third one, which I tried, and you will mostly see people making the list according to this or this. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए फ्रूटफुल है जिन्हें सिर्फ एक ही कोर्स करना है, लाइक दे आर सेट कि मुझे सिर्फ केमिस्ट्री ऑनर्स ही करना है, या फिर दे आर लाइक मुझे सिर्फ फिजिक्स ऑनर्स ही करना है, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दे हैव परफेक्ट प्लान इन देयर माइंड, या फिर जिन्हें सिर्फ चाहिए कि मुझे बस हिंदू कॉलेज ही चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ हंसराज कॉलेज ही चाहिए एंड ऑल दैट। एंड द थर्ड वे इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट आइडियल वे टू गेट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल वे टू गेट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो द थर्ड वे विच आई ट्राइड इज़ कि पहले मैंने अपनी सारी लिस्ट बना ली थी ऑफ कॉलेजेस की ये कॉलेजेस है एंड प्रेफर्ड कोर्सेज। फिर इन कॉलेज की लिस्ट से आई टुक 10 बेस्ट कॉलेजेस, लाइक ऊपर के 10 बेस्ट कॉलेजेस निकाले। फिर माई मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स मैंने वो रखा, फिर उस कोर्स के लिए मैंने वो सारे 10 कॉलेजेस फिल कर दिए। फिर आई टुक माई सेकेंड प्रेफर्ड कोर्स, फिर उसके लिए मैंने वही 10 अच्छे कॉलेजेस फिल कर दिए। तो इससे क्या था, फर्स्ट माई प्रेफरेंस लिस्ट इज़ अकॉर्डिंग टू कि अगर मुझे फर्स्ट राउंड में कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जो मुझे नहीं पसंद है, या फिर कोई ऐसा कोर्स मिलता है तो मैं अपग्रेड करूँगी। तो आइदर आई विल लैंड अप इन अ गुड कॉलेज और आई विल लैंड अप इन अ मोर प्रिफर्ड कोर्स।
डाले। फिर जब मेरे सारे 10 कोर्स ख़त्म हो गए वो 10 कॉलेजेस के लिए, फिर मैंने पहला कोर्स से लाइक इंग्लिश ऑनर्स डाला और फिर उसके लिए नेक्स्ट 10 कॉलेजेस डाले, जो उन 10 कॉलेजेस के नीचे 10 कॉलेजेस हैं वो डाले। फिर इस तरह मैंने सारे कोर्सों के लिए नेक्स्ट 10 कॉलेजेस डाले एंड लाइक दैट। सो इफ़ आई अपग्रेड, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अपग्रेड करने के बाद किसी बेकार कॉलेज में पहुंच गई या फिर किसी बेकार कोर्स में पहुंच गई, क्योंकि इफ़ आई विल अपग्रेड आइदर आई विल गेट अ बेटर कॉलेज और अ बेटर कोर्स। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लाइक दिस वॉज द आइडियल वे टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिकॉज मेरे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स भी थे हु वर लाइक उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे बट दे एंडेड अप इन दैट कॉलेज, उन्हें इससे बेटर कॉलेज मिल सकता था। एंड देयर वर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 300 से भी कम आए थे बट देयर प्रेफरेंस लिस्ट वर रियली गुड, आई कैन से लाइक दे हैड 290 मार्क्स like that, and they got ARSD college which is NIRF ranking 5th. So it depends on your preference list कि whether you will get a good college or not, because अगर आपकी preference list अच्छी है तो no matter कितने भी कम marks आए हो you will land in a one of the colleges of the university. And then सम पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आपने एक बार अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के सबमिट कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज दैट। आप उसे रीऑर्डर कर सकते हो पर बीच से कोई कॉलेजेस डिलीट नहीं कर सकते, कोई कोर्स डिलीट नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट रीऑर्डर दैट एंड बेटर गेट इट डबल चेक। और अगर इफ़ समवन यू नो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो उससे एक बार यू शुड टॉक टू देम ऑफ कोर्स, बिकॉज वहाँ जाके यू रियली नो कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और वहाँ जाके बच्चों को रियलाइज़ होता है कि दिस वॉज ऑल अ मिथ, दिस वॉज नॉट वॉट वी यूज़ टू सी इन रील्स एंड ऑल दैट। और वहाँ पे जाके आपको रियलिटी का पता लगता है, वहाँ पे जाके आपको रियलिटी का पता लगता है कि अच्छा यहाँ ऐसे से ऐसा करते हैं, यहाँ ऐसे से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है जैसा हमने देखा था। सो बेटर चूज़ वाइजली, चूज़ इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत रिग्रेट्स होने वाले हैं अगर आपने गलत प्रेफरेंसेस बनाई है या फिर आप गलत कॉलेज में लैंड कर रहे हैं। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू I will reply to all the comments, and if you have any doubt you can ask in the comment section and I will make a video on that. And stay tuned for more information about CVT 2025.